Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, air and water pollution. Introduction. A process by which some unwanted substances get mixed into the environment and cause undesirable change in our surroundings is called pollution. Thus, due to pollution, the environment becomes unfit for all the living beings. In other words, we can say that a gradual increase of harmful substances in our environment makes it unfit to support life. देखिए पोल्यूशन के बारे में हम सबको ही पता है कि व्हाट इज़ पोल्यूशन, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस जब वो मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से सराउंडिंग में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो कि अनडिजायरेबल होता है, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन. The problem of pollution is not new. It began when people first started living together at one place for a long time. It was not a serious threat at that time as everyone had enough space available. The early men's ways of living had little impact on the environment because they were few in number. In fact, volcanic eruptions and forest fires did more to damage the atmosphere than all the puny efforts of men put together. देखिए जो pollution का प्रॉब्लम है कुछ नया नहीं है. ये आपका शुरू हुआ था जब लोगों ने साथ में रहना स्टार्ट किया था. उस टाइम पे बहुत सारे सीरियस थ्रेट्स हैं, जैसे कि आपका वोल्केनिक इरप्शंस है या फॉरेस्ट फायर्स हैं, इनकी वजह से भी पोल्यूशन हुआ. Burning of fossil fuels, coal and petroleum produce heat, and from this heat, steam, carbon dioxide, and other toxic gases are released into the air. Tiny particles of carbon in the form of soot add to the problem. When these particles of soot begin to accumulate in the air, public health begins to deteriorate. Animals and trees start dying, unable to survive this altered environment. अब जैसे फॉसिल फ्यूल आपके बर्न होते हैं, यानी जैसे कि कोल या पेट्रोलियम जब बर्न होते हैं तो उसमें से हीट तो आपका रिलीज़ होता है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस भी आपकी रिलीज़ होती हैं. और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के सूट के फॉर्म में, वो इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं. जब ये पार्टिकल्स आप सूट के जो पार्टिकल्स होते हैं जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं एयर में, इसके बाद लोगों की जो हेल्थ है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है. When the particles of soot present in the air combines with droplets of moisture in the cold evening air, it results in the formation of a smoke. Oxygen levels already low fall further. Pollution has become a problem of such huge proportions that it is threatening the very existence of all life on earth. अब देखिए प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया है पोल्यूशन का कि इसकी वजह से जो लाइफ थ्रेटनिंग, यानी हमारी जो लाइफ, हमारा जो एग्जिस्टेंस है अर्थ में, वो खतरे में हो गया. द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, such carbon dioxide, domestic and industrial sewage, toxic elements and chemical substances that emit harmful radiations, non-biodegradable materials, etc. are pollutants which are discharged as a result of development and industrial activities. The various kinds of pollution can be studied under the three major components of the environment: air, water and land. We will mainly discuss air and water pollution since these constitute the bulk of the problem. देखिए जो undesirable substance हमारे environment पे आपके add on हो जाते हैं जो कि pollution के लिए responsible होते हैं, उन्हें कहते हैं pollutants. और ये आपके होते हैं three types के, solid, liquid and gaseous. राइट वैसे तो देखिए आपके जो वेरियस काइंड्स है पोल्यूशन के, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपके एयर, वाटर एंड लैंड के बारे में, जिसमें से हम मेन वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे. एयर पोल्यूशन. Air is a mixture of many gases that are present in a fixed ratio. When the ratio is disturbed for any reason, the air is said to be polluted. Thus, air pollution involves the accumulation of certain poisonous gases along with minute solid particles or finely dispersed liquid aerosols at a rate that is beyond the capacity of the atmosphere to disperse or dispose of. There are various causes of air pollution. They could be natural or man-made. Air आपको पता है बहुत सारी gases का mixture है जो फिक्स्ड आपके रेशियो पे होते हैं. तो जब ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो तब एयर को कहा जाता है कि ये पोल्यूटेड है. अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. आपका हो सकता है कि वो नेचुरल हो या फिर रीज़न मैन मेड भी हो सकता है. Natural causes include dust storms in desert areas, smoke from forest and grass fires, pollen floating in the air and even volcanic eruption. They all contribute to chemical and particulate pollution of the air. Volcanic activity is probably the most lethal source of natural air pollution. Volcanic eruptions are sporadic geophysical events that produce large amounts of ash and toxic fumes. These ash and toxic forms mixed with the atmosphere make it polluted.
Air pollution usually affects human being directly, causing a burning sensation in the eyes or respiratory ailments. Air pollution is steadily changing the global climate. Melting of glaciers and depletions of ozone layer are a result of air pollution. देखिए नेचुरल कॉज में आपके क्या होते हैं, जैसे कि डस्ट स्टॉर्म आपके डेजर्ट एरिया में चलते हैं, या फॉरेस्ट से जो अगर फॉरेस्ट फायर हो जाती है तो उसमें स्मोक निकलता है, और आपका जो पोलन आपके एयर में आपके फ्लोट करते रहते हैं, या फिर आपका वल्केनिक इरप्शन, तो सारे ही नेचुरल कॉजेज हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. अब जो एयर पोल्यूशन है वो यूजुअली ह्यूमन बींग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. बर्निंग सेंसेशन होता है जैसे आइज़ में, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. तो जो एयर पोल्यूशन है वो क्या कर रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट को भी धीरे धीरे चेंज कर रहा है. जैसे कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं, एक्चुअल में आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, राइट, एंड ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है. ये सारी एयर पोल्यूशन के रिजल्ट्स की वजह से. There are many man-made causes of air pollution. There is a steep increase of particulate matter in the air as a result of smoke, dust and other solids from industrial activity. Such an increase would seem to indicate an increasing percentage of solar radiation being reflected back into space. This in due course could cause a lowering of the temperature of Earth's surface and potentially a new ice age. Paradoxically, the blanket of greenhouse gases seems to be trapping heat close to the Earth's surface, raising global temperatures to levels at which many life forms will start. Even a rise of 1 degree Celsius or 2 degrees Celsius in the Earth's temperature will have drastic consequences. देखिए बहुत सारे man-made कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, या जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से जो दूसरे सॉलिड पार्टिकल आपके इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं. तो जब इनका परसेंटेज इंक्रीज़ होता है तो ये क्या करते हैं कि देखिए जो रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन का जो रिफ्लेक्ट हो रहा है बैक इनटू द स्पेस, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस पे वो लोअर हो जाएगा एंड पोटेंशियली एक न्यू आइस एज आएगा. एंड जो ब्लैंकेट है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो क्या करता है कि वो हीट को ट्रैप कर लेता है अर्थ सरफेस के पास, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. और अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का अगर बढ़ा तो इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होंगे. दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग. ओवर 10,000 glaciers in North America alone have vanished and the polar ice caps are shrinking fast. With major rivers such as the Nile, the Ganga and the Yangtze slowly drying up, scientists feel that unless something is done quickly to halt the trend, the effects of atmosphere pollution will alter the global climate to levels where much of Earth's unique flora and fauna will perish. देखिए ये ऑलरेडी हो रहा है. अभी तक 10,000 ग्लेशियर्स नॉर्थ अमेरिका में वैनिश हो चुके हैं. पोलर आइस कैप जो है वो श्रिंक हो रही है बहुत ही फास्ट रेट पे आपके. और बहुत सारी रिवर्स है जैसे कि नाइल है या गंगा रिवर है, ये स्लोली ड्राई अप हो जाएंगे. ओके और देखिए आपका एक मैटर ऑफ कंसर्न और भी है, वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. क्योंकि जब केमिकल रिएक्शंस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, जो कि आपके एरोजोल कैन से एमिट होते हैं या रेफ्रिजरेटर से, ये आपके क्या होते हैं कि ये डायरेक्ट आपके ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये डिप्लीट हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज बीइंग कॉज्ड बाय द केमिकल एक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स emitted from aerosol cans and refrigerators, as well as by pollutants released from rockets and supersonic aircraft. देखिए लगभग 10,000 ग्लेशियर्स नॉर्थ अमेरिका में, अकेले नॉर्थ अमेरिका में वैनिश हो चुके हैं. पोलर आइस कैप्स धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है, राइट. बहुत सारी रिवर्स है जैसे नाइल है या गंगा नदी है, ये धीरे धीरे ड्राई अप हो जाएंगे. इसके अलावा एक मैटर ऑफ कंसर्न और भी है, वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. और इसका डिप्लीशन हो रहा है जब केमिकल रिएक्शन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, जो कि आपके एरोजोल कैन से या फिर आपके रेफ्रिजरेटर से एमिट होते हैं. ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट हो रही है. डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स ultraviolet radiation from the sun would have serious effects on living organisms on the Earth's surface, including increasing incidence of skin cancer among humans. अब देखिए ओजोन लेयर हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमें पता है, क्योंकि ये सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करता है. और अगर ये डिप्लीट हुई तो बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे.
Another serious climatic effect of air pollution is acid rain. This occurs when sulfur dioxide and nitrogen oxides released from the burning of fossil fuels combine with water vapor in the atmosphere, forming acids. Although these acids are diluted, their long-term effects include damage to heritage monuments and degradation of water, forest and soil resources. अब देखिए एक और आपका सीरियस क्लाइमेटिक इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का, विच इज एसिड रेन. ये कब होता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आपके जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होते हैं वो आपके रिलीज हो जाते हैं जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, देन ये वाटर के साथ कंबाइन होके एसिड बनाते हैं. During the 1950s, effects of release of radiation-emitting substances from atmosphere due to the testing of atomic and hydrogen bombs became a major concern worldwide. The danger of radioactive pollution of the air and the dispersal of radioactive particles over the entire surface of the earth stimulated serious investigations, which led to the discovery of potentially dangerous situations. अब देखिए 1950s के टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे आपके एटॉमिक और हाइड्रोजन जो बॉम्ब्स थे उनका टेस्टिंग शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक नया पोल्यूशन आपका इंट्रोड्यूस हुआ, विच इज़ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. क्योंकि देखिए जब एटॉमिक या फिर आपका हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्टिंग होता है उसमें बहुत सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं, और उस रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है आपका जब एयर में आपका मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से आपका एयर पोल्यूशन होता है. It was observed that radioactive materials of many kinds can build up in living tissue, causing severe tissue damage even when the general level of environmental contamination is low. और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स थे जो आपके लिविंग टिश्यू में बिल्डअप हो जाते हैं, राइट, और हमारे टिश्यू को डैमेज करते हैं. Another source of air pollution is contaminated indoor air. Sometimes the levels of pollution inside our homes, schools and other buildings can be higher than the levels outside. Indoor air pollution comprises a mixture of contaminants penetrating from outdoor and those generated indoor. The accumulated evidence indicates that the air within homes and other buildings can be more seriously polluted than the outdoor air. People who are exposed to indoor air pollution for long periods of time are most susceptible to its effects. अच्छा, आपको पता है कि इंडोर एयर पोल्यूशन भी एक दूसरा आपका सोर्स है. कई बार क्या होता है कि जो लेवल होता है पोल्यूशन का हमारे घर के अंदर या स्कूल के अंदर या किसी भी बिल्डिंग के अंदर, वो आउटसाइड के लेवल से ज़्यादा होता है. तो जो आपका देखिए जो एक्यूमुलेटेड एविडेंस आपके ये इंडिकेट करते हैं कि जो घर के अंदर की आपकी एयर है या बिल्डिंग्स के, वो भी आपकी जो सीरियसली पोल्यूटेड है आपके आउटडोर एयर से, उसकी वजह से भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं. दे इंक्लूड द young, the elderly and the chronically ill, especially those suffering from respiratory or cardiovascular disease. और इसकी वजह से जो यंग है, जो elderly people है, जो आपके chronically ill हैं, और स्पेशली वो जिनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. There are many sources of indoor air pollution. These sources include combustion of oil, gas, kerosene, coal, wood, tobacco products, building materials, wet or damp carpets, asbestos soundproofing of fire retardant sheeting, cabinetry or furniture made of certain pressed wood products, household cleaning products, pesticides and outdoor air pollution. Many people are constantly living in a danger zone, even inside their homes. In such cases, the polluted air acts like a slow working poison, a silent, invisible and insidious assassin. अब आप ये सोचेंगे कि इंडोर एयर कैसे पोल्यूट हो सकती है, तो देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं. ये सारे ही सोर्सेज हैं जिनकी वजह से इंडोर जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली डेंजर जोन में रहते हैं, मतलब अपने घर के अंदर ही. तो ऐसे केसेस में क्या है कि जो पोल्यूटेड एयर एक स्लो पॉइजन का काम करता है. वाटर पोल्यूशन. Water is the second most important life supporting substance. We all need clean, pure and good quality water to drink. What is good quality water? Good quality water is an aqueous solution of carbonates, bicarbonates, sulfates and chlorides of the alkali metals and alkaline earth metals at low concentration level, that is within the maximum permissible limit prescribed for drinking. अच्छा, water हम सबके लिए important है, everyone knows that. But ये good quality water क्या है? देखिए good quality water होता है जो कि aqueous solution है आपका carbonates, bicarbonates, sulfates and alkali metals के chlorides and alkaline earth metals but low concentration में.
The process of inducting an objectionable matter in water is called water pollution. Water pollution is caused by the release or leaching of effluents or pollutants into groundwater, lakes, streams, rivers and oceans. अच्छा अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आपका मेटर या अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस है वो वाटर में अगर आपका एड ऑन हो जाता है तो उसकी वजह से आपका वाटर पोल्यूट हो जाता है. These wild substances get dissolved or are suspended in the water or deposited at the bottom and accumulate in such a way that they interfere with the functioning of aquatic ecosystem. तो देखिए ये भी जो भी अनडिजायरेबल आपके सब्सटेंस होते हैं या तो आपके सस्पेंड करते रहते हैं वाटर में या आपके बॉटम में आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उनकी वजह से फिर आपका वाटर पोल्यूशन होता है. सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ वाटर कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स. नंबर 1, point sources. Those readily identifiable at a single location such as industries, municipal sewage treatment plants, septic tanks, combined sewer overflows and raw sewage discharge. तो देखिए आपके sources जो हैं water pollution के वो दो types में आपको categorize किया गया. Number 1 is point sources जिनको आप easily identify कर सकते हैं. Number 2 is non-point sources. Those diffuse discharges whose location cannot be identified. The main sources are agriculture, forestry, mining, construction, urban runoff and residual wastes. तो देखिए नॉन पॉइंट सोर्सेज आपके वो होते हैं जिनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. Some of the common non-point sources of contaminants are fertilizers, farmyard manure and compost used for agriculture purposes. Land disposed industrial effluents from brick kilns and industrial plants engaged in plating, galvanizing, rayon manufacturing, rubber processing, पिकलिंग एंड आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर. तो देखिए कुछ कॉमन आपके नॉन पॉइंट सोर्सेज जो कंटामिनेंट्स के हैं वो आपके ये सारे ही एग्जांपल्स हैं. Regular application of nitrogenous fertilizers, phosphate fertilizers, fumigants, rodenticides, insecticides and herbicides containing fluoride as impurity or constituent and other such agrochemicals as well as indiscriminate disposal of wastes are likely to qualify as non-point sources of contamination. अब आपके नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन के आपके और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स है या फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स हैं, रोडेंटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड. ये सारे ही आपके नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं. केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर. The runoff containing chemical fertilizers, pesticides and other materials used on watershed agriculture land is a factor that contributes to water pollution. The loads of sewage, septic tanks, urban wastes from cities and towns and outflow of manures from the watershed are additional sources of pollutants. Industries located along waterways also discharge the untreated effluents containing chemical pollutants, some of which are toxic into municipal sewage systems or water bodies such as rivers. तो देखिए वाटर पोल्यूशन जैसे आपके पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ओके, आपके फिर वो रन ऑफ हो जाते हैं आपके ग्राउंड वाटर में या आपके नियर बाय रिवर में चले जाते हैं. सिवेज है, सेप्टिक टैंक है, इन सबको कहाँ पे आपका खाली किया जाता है, आपके रिवर्स में डाल दिया जाता है, राइट. तो ये सारा ही जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके वाटर पोल्यूशन में. इरोजन ऑफ सॉइल एड्स सिल्ट एज अ पोल्यूटेंट. द टाउन्स एंड सिटीज इन द लोअर रीजन्स ऑफ रिवर बेसिन्स कंट्रीब्यूट एडिशनल वेस्टेज दैट फ्लो इनटू एस्चुरीज क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. अच्छा देखिए जब सॉइल इरोजन होता है तो उसकी वजह से सिल्ट ऐड हो जाता है एंड ये आपका एज अ पोल्यूटेंट ऐड होता है. फिर आपका जो टाउन या सिटीज़ जो आपके लोअर रीजन में होते हैं आपके, तो वो क्या करते हैं कि वो एडिशनल वेस्ट लेकर आते हैं, ओके, जो आपके एस्चुरीज में फ्लो करता है जिससे कि वाटर पोल्यूशन का नया प्रॉब्लम आपका क्रिएट होता है. सोर्सेज ऑफ नाइट्रेट पोल्यूशन ऑफ वाटर. Some of the industries that contain high levels of nitrate in the effluents include the fertilizer, distillery, brewery, meat packing and other such industries. Large amount of nitrogenous wastes are often produced by farm animals and sewage. इसके अलावा देखिए नाइट्रेट पोल्यूशन ऑफ वाटर कैसे होता है, बहुत सारे इसके रीजंस हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट होता है, राइट. उनके एफ्लुएंट्स में जैसे कि आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, डिस्टिलरी, ब्रूअरी, मीट पैकिंग एक्सेट्रा. कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हेवी मेटल्स. द मेन सोर्स ऑफ हेवी मेटल्स इज industrial waste. Heavy metals such as lead, mercury, cadmium and lithium are found either in treated but not actually purified form or in more concentrated form at dumping sites. Mining and smelting are other sources.
traces of arsenic are due to presence of arsenic-rich mineral deposits in the vicinity, which are often absorbed by plant roots. If these plants are consumed by humans, they cause severe medical complications. अच्छा देखिए, हैवी जो मेटल्स होते हैं आपके, जैसे कि लेड है, मर्क्यूरी है या कैडमियम है, इनकी वजह से जब इनको डंप किया जाता है साइट्स पे, राइट, तो इनकी वजह से क्या होता है, आपका वाटर पोल्यूशन होता है। माइनिंग है या आपका जो स्मेल्टिंग हो रहा है दूसरे आपके सोर्सेज का, जो आपके ट्रेसेस है आर्सेनिक्स के, ये आपके होते हैं किसकी वजह से, क्योंकि जैसे आपके जो आर्सेनिक रिच मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं उनकी वजह से, ओके, जो कि प्लांट्स रूट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर इन प्लांट्स को जिन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया है वो ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो इसकी वजह से बहुत सारी आपकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर. Sometimes concentration of toxic pollutants is so high that their breakdown is beyond the capacity of the microorganisms in water. In such cases, the excess of nutrients encourages a rapid growth of algae, a state known as algal bloom. After they die, the remains of the dead algae further add to the organic wastage already in the water. Eventually, the water becomes deficient in oxygen. Anaerobic organisms then attack the organic wastage, releasing gases such as methane and hydrogen sulfide, which are harmful to those forms of life that require oxygen. अच्छा, कई बार क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है टॉक्सिक पोल्यूटेंट का इतना हाई हो जाता है कि जो उनका जो ब्रेक डाउन होता है तो वो बियॉन्ड द कैपेसिटी हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वजह से फिर एल्गे का एक रैपिड ग्रोथ होता है, जिसको एल्गल ब्लूम भी कहा जाता है। एंड जब एल्गे जब व्हेन दे डाई तो क्या होता है, जो रिमेन्स होते हैं डेड एल्गी के वो फर्दर ऑर्गेनिक वेस्ट को ऐड कर देते हैं, राइट और इसकी वजह से जो वाटर है वो ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो जाता है। और आपके जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट में अटैक करते हैं वो गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। यूट्रोफिकेशन इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एन एजिंग aquatic ecosystem such as lake. This is a condition that is fatal for many kinds of aquatic life. अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है फॉस्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन में, नाइट्रोजन एंड दूसरे जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट के होता है, तो ये कंडीशन होती है जो कि बहुत सारी एक्वाटिक लाइफ के लिए फेटल होती है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योर वाटर ऑन सॉइल. Accidental or intentional release of hazardous wastes on the land surface can seriously affect both the environment as well as human health. The contamination of soil may be due to the discharge from industrial sites or leaking underground storage tanks. Irrigation water contains dissolved salts. When the water is fed into fields, the salts never reach deeper layers in the soil. High rate of evaporation results in the accumulation of salts in the upper layers of the soil, saturating it with salts. देखिए क्या होता है, कई बार एक्सीडेंटल रिलीज हो जाता है हैजार्डस वेस्ट का, या कई बार इंटेंशनली भी होता है लैंड सरफेस पे, जिसकी वजह से सीरियस इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट को भी और साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ को भी। तो जब सॉइल का कंटामिनेशन होता है, जब इंडस्ट्रियल साइट से जैसे कि डिस्चार्ज होता है, या कई बार क्या होता है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक आपके लीक हो जाते हैं, राइट। इरिगेशन वाटर में आपके बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। तो जब वाटर को आपकी फील्ड में डाला जाता है, जब फील्ड की इरिगेशन की जाती है क्रॉप्स की, तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो कभी भी सॉइल के डीपर लेयर्स तक नहीं पहुंचते हैं। और जब हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉल्ट है वो अपर लेयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। द कंडीशन में बिकम सो सीवियर दैट ओनली सिलेक्टेड सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स सच एज sugar beets can be grown. Irrigation water containing a high level of fluoride is known to inhibit plant activities and restrict plant growth and respiration. अब देखिए जब वाटर आपका सॉल्ट जो है आपके अपर लेयर में एक्यूमुलेट होगा तो कुछ ही ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि इसको बेयर कर पाती हैं, जैसे कि शुगर बीट्स की बात हम करें तो बाकी जो प्लांट होंगे, क्योंकि अगर आपका देखिए इरिगेशन वाटर में हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड होता है जो कि प्लांट की एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो रेस्पायर नहीं कर पाते हैं। इफेक्ट ऑफ इम्प्योर वाटर ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कंटामिनेटेड वाटर हैज़ एन appalling effect on living organisms, especially on humans. Reliable sources state that concentration of nitrates in water has carcinogenic effects that may lead to blue baby syndrome, anemia, and hamper oxygen transport by blood. It may cause gastric cancer and also adversely affect the cardiovascular system. अब देखिए जो कंटामिनेटेड वाटर होता है ये ह्यूमंस को आपका इफेक्ट करता है हाईली, जैसे कि आपके नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर वाटर में है तो कार्सिनोजेनिक उसका इफेक्ट होता है,
ठीक है, एनीमिया हो सकता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर कर सकता है बाय ब्लड, ओके, इसकी वजह से गैस्ट्रो कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। Concentration of fluoride in water may cause dental fluorosis indicated by staining of tooth enamel, mottled pitted teeth and hypoplasia in children. It can also cause neurological complications. Long-term intake of water containing fluoride may lead to stiffness of spine, calcification of ligaments and tendinous insertions leading to crippling skeletal fluorosis, symptoms of persistent backache. ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड का वाटर में आपका ज़्यादा, उसकी वजह से डेंटल फ्लोरोसिस का चांस हो सकता है, जैसे कि जो आपके स्टेनिंग हो जाती है टूथ एनेमल में, ओके, और मॉटल या पिटेड टीथ हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म इनटेक अगर इसका रहा, अगर आपने फ्लोराइड रिच वाटर लॉन्ग टर्म तक इनटेक किया तो उसकी वजह से स्पाइन का स्टिफनेस भी हो सकता है और लिगामेंट्स की कैल्सिफिकेशन हो सकती है। Intake of more than 5.0 gram may lead to death, और अगर इसका intake आपका 5.0 ग्राम यानी 5 ग्राम से अगर ज़्यादा हो तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। Apart from these effects, consumption of contaminated water causes many other diseases such as diarrhea, cholera, jaundice, etc. Effect of soil containing excess fertilizers and insecticides on water resources. There has been unprecedented increase in agricultural production in northwestern India over the last 4 decades. This was made possible by the huge increase in the amount of fertilizers applied to crop fields. As a consequence of this heavy dose of fertilizers in several regions with irrigated soils, nitrate content in groundwater is continuously increasing. Groundwater in most areas under agricultural use is severely affected by nitrate and fluoride pollution, usually far more than the WHO prescribed maximum permissible limits in drinking water. अब देखिए आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो इसकी वजह से क्या कि जो ह्यूज इंक्रीज़ हुआ है अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स में जो कि क्रॉप फील्ड में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से अब हेवी डोज जब फर्टिलाइजर्स का यूज़ होगा तो उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका कि जो ग्राउंड वाटर है वो कंटिन्यूसली आपका क्या हो रहा है, उसमें नाइट्रो का जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब जो ग्राउंड वाटर है बहुत सारे एरियाज़ में वो स्पेशली जो एग्रीकल्चर एरियाज़ के आसपास है वो सीवियरली इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ नाइट्रेट and fluoride pollution. For example, groundwater in Haryana contains very high levels of nitrate. In Rajasthan, groundwater contains very high content of fluoride and iron. Groundwater of Delhi shows presence of nitrate and fluoride contaminants in varying amounts. Phosphate fertilizers, which are extensively used, contain fluoride as an impurity. This may be the reason for the increase in the level of fluoride in soil. अच्छा देखिए, जो ग्राउंड वाटर है हरियाणा का उसमें हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट पाया जाता है। राजस्थान में जो ग्राउंड वाटर है उसमें हाई कंटेंट पाया जाता है फ्लोराइड का एंड आयरन का। तो जो और ग्राउंड वाटर जो दिल्ली का है उसमें भी जो है नाइट्रेट का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है और फ्लोराइड कंटामिनेंट का भी काफ़ी ज़्यादा है। पोर्टेबल वाटर, वाटर विच इज़ ऑफ अ क्वालिटी गुड। Potable water, water which is of a quality good enough to be served as drinking water is called potable water. It must be realized. Potable water, water which is of a quality good enough to be served as drinking water is called potable water. It must be realized that most polluted water can never be eliminated. Some may be converted to a less polluting form. Although boiling is used to rid water of microorganisms, the water can still contain particles, so further filtering becomes necessary. अच्छा, पोर्टेबल वाटर यानी कि आपका जो गुड क्वालिटी वाटर होता है जिसको कि आप पी सकते हैं, राइट, दैट इज़ पोर्टेबल वाटर। अब देखिए, जो वाटर के पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ को हम लेस पोल्यूटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बॉइलिंग से जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके किल हो जाते हैं। इसके बाद भी वाटर में बहुत सारे आपके पार्टिकल्स होते हैं, तो इसीलिए उसकी जो फर्दर फिल्टरिंग काफ़ी ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन कॉजेज डर्ट एंड डेब्रिस टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर container and makes the water visually clear.
However, chlorine is highly toxic and adding too much of it to water can cause illness, internal organ damage or even death. अब देखिए क्लोरीनेशन जो होता है वो आपका जो वाटर का थोड़ा सा क्लियर कर देता है, बट अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया क्योंकि इट इज़ हाईली टॉक्सिक, तो इसको ज़्यादा अमाउंट में अगर आपने ऐड किया तो उसकी वजह से बहुत सारी इलनेस हो सकती है. Modern methods of water purification. There are a wide range of water filters, purifiers, and methods of water purification available in the market today. In reality, there is no single artificial filter or treatment that will eliminate every contaminant from water. Typically, most higher end systems use a combination of filtration technologies to achieve the best results. Filtration allows all particulate matter present in the water to be mechanically or physically removed. Mechanical filtration is the most familiar form to us. On a large scale, it may be done by passing the water through a clean sand vent. On a smaller scale, various forms of wire mesh cloth filters and treated paper filters are used. तो देखिए बहुत सारे आपके वाइड रेंज है हमारे पास आज अवेलेबल है वाटर फिल्टर्स की, प्योरीफायर्स की, और बहुत सारे मेथड्स भी हैं अवेलेबल वाटर प्योरीफिकेशन के, राइट. बट रियलिटी में कोई सिंगल आर्टिफिशियल फिल्टर या जो ट्रीटमेंट है वो हर कंटामिनेट को एलिमिनेट नहीं कर सकता वाटर से, राइट. तो देखिए आपके जो मोस्ट हायर एंड सिस्टम होते हैं उसमें कॉम्बिनेशन होता है फिल्टरेशन का, जो जिसकी वजह से बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. तो जो मैकेनिकल फिल्टरेशन आपका होता है ये आपका बहुत फेमिलियर है हम लोगों के लिए. लार्ज स्केल में इसको किया जाता है जब वाटर को किसी क्लीन सैंड बेड पे पास किया जाता है, और स्मॉलर स्केल में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं वाटर, जैसे कि आपकी वायर मैश है या क्लोथ फिल्टर्स हैं या फिर आपके ट्रीटेड पेपर फिल्टर्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है. इन माइक्रो फिल्ट्रेशन वाटर इज पास्ड through a membrane with a pore size of less than 1 micrometer. These tiny pores retain contaminants such as suspension that have passed conventional mechanical filtration system but cannot trap substances at a molecular level. Ultrafiltration is the answer to this. अब माइक्रो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि माइक्रो जो वाटर है उसको पास किया जाता है मेम्ब्रेन में, जिसमें आपके पोर साइज होते हैं जो 1 माइक्रोमीटर से आपके कम होते हैं. तो ये जो टाइनी पोर्स होते हैं ये कंटामिनेंट्स को रिटेन कर लेते हैं, राइट. बट ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं आपके सब्सटेंस उन्हें ट्रैप नहीं कर सकते, तो इसीलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है. द माइक्रोबायोलॉजिकल फिल्टर कैंडल विद इट्स ट्रिपल एक्शन प्रोसेस ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटरबोर्न डिसीज. अब आपका जो माइक्रोबायोलॉजिकल फिल्टर कैंडल है इसमें ये ट्रिपल एक्शन के साथ काम करता है. ट्रिपल एक्शन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो वाटरबोर्न डिसीज़ है यानी वाटर से होने वाली जो डिसीज़ है उनसे प्रोटेक्शन मिलता है. द सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑफ द सिरामिक ट्यूब स्टॉप द पैसेज ऑफ solid particles, bacteria and toxic elements, retaining these harmful elements on the outer side of the filter. अभी क्या करते हैं कि जो भी आपके solid particles हैं या बैक्टीरिया है या फिर toxic elements हैं उनको retain कर लेते हैं. In reverse osmosis, RO, a semi-permeable membrane filter separates the water from contaminants such as totally dissolved solid, turbidity, asbestos, lead and other toxic heavy metals including radium and many dissolved organic substances. Waterworks supplies water in urban areas. These civic installations are required by law to adopt certain steps to purify the water in order to make it potable. The first step towards this objective is the stage of storage, during which almost 90% of the contaminants present in the water settle to the bottom within a day. अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ जो हर घर में आज यूज़ किया जाता है, ये आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि फिल्टर करता है आपके वाटर को कंटामिनेंट से, जैसे कि जो भी डिजॉल्व आपके सॉलिड्स होते हैं, टर्बिडिटी, एस्बेस्टस है. वाटरवर्क सप्लाइज वाटर जो आपके अर्बन एरियाज़ में होता है, ये सिविक इंस्टॉलेशंस आपकी इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, राइट. तो जो पहला स्टेप होता है इसमें वो होता है आपका स्टोरेज, जिसमें आपका जो ऑलमोस्ट 90% जो कंटामिनेंट्स आपके वाटर के वो आपके बॉटम में सेटल हो जाते हैं विद इन अ डे. फिल्टरेशन, द नेक्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस, रिमूव्स मोस्ट ऑफ द कंटामिनेंट्स. Lastly, before supply, the water is disinfected by treating it with chlorine, ozone and ultimately ultraviolet radiation. This makes the water absolutely free of odor, taste, color and microorganism. अब पहला स्टेप जो है आपका वो स्टोरेज है. नेक्स्ट स्टेप इज फिल्टरेशन. इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके कंटामिनेंट्स होते हैं ज़्यादातर कंटामिनेंट आपके रिमूव हो जाते हैं. फिर लास्ट में
सप्लाई होने से पहले, वाटर को सप्लाई करने से पहले वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है, जब उसको क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाता है, ओजोन के साथ, एंड अल्टीमेटली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ। इससे क्या होता है कि वाटर जो है वो एब्सोल्युटली फ्री हो जाता है ओडर, किसी भी स्मेल से, टेस्ट, कलर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो हियर इज अ टेबल गिवन जिसमें आपके देखिए कंटामिनेंट्स दिए गए हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं एंड ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्लोराइड है, इसके सोर्सेज हैं म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज, इंडस्ट्री एंड फॉस्फेट रोक्स, एंड इसके इफेक्ट्स हैं स्टेन्ड या मॉटल टीथ, क्रिपलिंग बोन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इज आर्सेनिक, नेचुरल प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, ये इसके सोर्सेज हैं। एंड इसका इफेक्ट क्या है कि लिवर एंड किडनी डैमेज एंड डिक्रीज ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। थर्ड वन इज कॉपर, ये आपका देखिए कहाँ से, इसके सोर्सेज आपके हैं इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, माइनिंग एंड मिनरल लीचिंग। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स? स्टमक एंड इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, किडनी एंड लिवर डैमेज, अनीमिया। नेक्स्ट वन इज लेड, सोर्सेज है इंडस्ट्री, माइनिंग एंड प्लम्बिंग, एंड इफेक्ट्स डिलेज नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। पॉइंट्स टू रिमेंबर: pollution is induction of certain unwanted substances in air, water and land which cause undesirable changes in properties of air, water and land. Acid rain occurs when sulfur dioxides and nitrogen oxides from the burning of fossil fuels combine with water vapor in the atmosphere. Water pollution is the induction of objectionable matter in water that changes its properties and makes it unfit for various purposes. The runoff containing chemicals and other materials used on watershed agricultural lands contributes to chemical contamination of water. The contamination of soil may be due to the discharge from industrial sites or leaking underground storage tanks. Concentrations of nitrate in water have carcinogenic effects which may lead to blue baby syndrome and metanemia and hamper oxygen transport in blood. Eutrophication is a gradual increase in the concentration of phosphorus, nitrogen and other plant nutrients in an aquatic ecosystem. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।